پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ ڈیفیڈ کی کتابوں کی منسٹر نے اپنے جاننے والوں کو دے دیے ہیں ٹینڈر منسٹر نے سب کچھ کیا ہے، بربادی پھیر دی ہے سب چیزیں۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ ٹینڈر جو ہیں وہ ٹینڈر الاٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے کیونکہ ان میں پرابلمز تھی۔ اس لیے اگر الاٹ ہی نہیں ہوئے تو میں نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں سے دے دی۔ اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دوبارہ ٹینڈرنگ کی، ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی۔ 41 کروڑ اور چینج کے یہ ٹوٹل پیسے ہیں کتابوں کے، 11 ضلعوں میں 11 ضلعوں میں یہ ہم نے کر رہے ہیں۔ غریب بچوں کی کتابیں ہیں، کمیٹیاں بنائی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ میں تو نام لے کہوں گا، حسن نثار صاحب نے اس پہ کالم بھی لکھ دیا ہے اور اس پہ اپنے شو میں بھی کہہ دیا ہے۔ حسن نثار صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میرے پاس آئیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے بات کریں، پہلے پوری بات دیکھ لیں کہ یہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اس میں فیکٹس کیا ہیں، کیونکہ بات کرنی بڑی آسان ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں میں بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے آج آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ آئے ہمارے پاس ان ٹینڈرز کے لیے۔ میرے پاس نہیں آئے، ڈپارٹمنٹ کے پاس، میرے پاس ان کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے، سوچتی ایسے ایسے لوگ جو ارب پتی لوگ ہیں، جو ٹی وی پہ شوز کرتے ہیں، وہ لوگ آئے کہ آئیں جی ہمارا یہ ہماری کتاب ڈلوا دیں، ہمارا یہ ڈلوا دیں۔ پریشان کن بات تھی جب میرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے آ کے مجھے بتایا کہ جی یہ آدمی آیا ہوا تھا، یہ آدمی آیا ہوا تھا۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ غریب بچوں کی کتابیں ہیں، جانے دیں ان کو، میرٹ پہ جا رہی ہیں، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں۔ کمیٹیز میں اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں چونکہ بہت ضروری ہے۔ یہ 11 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے کہا جی کہ اپنے جاننے والوں کو پھر دی جا رہی ہے۔ نمبر آف پبلشر ذرا سن لیں آپ، ڈی جی خان میں 159، فیصل آباد میں 94، لاہور میں 157، لودھرا میں 273، میاں والی میں 216۔ اسی طرح پوری لسٹ ہے 11 ڈسٹرکٹس کی۔ کون سا رشتہ دار ہے بھائی؟ کہاں پہ پیسے جا رہے ہیں؟ کون چوری کر رہا ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیں۔ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے، ہر چیز۔ جس کو کوئی شک ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ، جس کو کوئی سوال ہے آ جائے ڈپارٹمنٹ، پوچھے آ کے کہ یہ کس کے پاس کہاں جا رہی ہیں چیز۔ ٹوٹل 41 کروڑ کی کتابیں ہیں، کہا جا رہا ہے جی اربوں روپے تباہ کر دیے، اربوں روپے کی کتابیں۔ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ 41 کروڑ چینج کی کتابیں، 3 ارب کی کتابیں ہیں، تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، فیکٹس پہ نہیں آنا، کسی چیز پہ نہیں آنا، بس کہ سب سے پہلے خبر دے کے یا سب سے پہلے بات کر کے اس وقت کے لیے وہ سینسیشنلائز کر دیا خبر کو، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے فیکٹس کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس میں اور کوئی ڈیٹیلز ہم نے دینی ہے جی؟ اگر پوچھیں گے تو دے دیں گے۔ ضلع ہی پروکیور کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ ضلع پروکیور کر رہے ہیں، مجھے بتایا گیا، یہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ضلع پروکیور کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا۔ یہ ضلعوں میں جا کے ساری بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے پاس ہے اور ڈی سیز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ سو اس لیے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس سٹنگ اپ ہیئر ان لاہور۔ کرونا پہ آ جاتے ہیں، اسکولز کی اوپننگ کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر۔ اس وقت ہمارے پرائیویٹ سکولز کے اندر تقریباً 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، گورنمنٹ سکولز کے اندر تقریباً 1.4 ملین، تقریباً 14 لاکھ بچے جا رہے ہیں جو 9th اور 10th کے۔ ہم نے 25,000 روپے سے زیادہ، 25,000 ٹیسٹ سے زیادہ ہم نے رینڈم سکولوں میں کروائے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے۔ کیسز نکلے ہیں، وہ نکلے ہیں ننکانہ میں نکلے ہیں، گجرانوالا میں نکلے ہیں، گجرات میں نکلے ہیں اور فیصل آباد میں۔ سو جہاں جہاں ہمیں پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز میں کیسز نکلے ہیں، وہاں پہ ہم نے سکول بند کر دی۔
उन स्कूल्स को सील कर दिया गया। एक केस भी किसी स्कूल में निकलेगा तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। मेरे से ये हमेशा पूछा जाता है कि जी कितने केस निकलेंगे तो स्कूल बंद करेंगे। अगर एक केस भी निकलेगा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उस स्कूल में रैंडम टेस्टिंग होगी, टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी। जब तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस स्कूल को नहीं खोला जाएगा। 50 से कुछ ज्यादा केसेस निकले हैं अभी तक। सब ने इस तरह समझ लिया एकदम, क्योंकि हर दफा मुझे कोई पूछता है कि जी केसेस निकल रहे हैं। ऑब्वियसली केस तो निकल रहे हैं, कोरोना खत्म तो नहीं हुआ। या तो कोरोना खत्म हो गया हो तो फिर हम आपसे कहेंगे हाँ जी केस क्यों निकल रहे हैं। एसओपीज दिए गए, एसओपीज को फॉलो करना है। हम मेक श्योर कर रहे हैं सख्ती से एसओपीज को फॉलो किया जाए। जहां फॉलो नहीं हो रहे उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टीम्स हर जगह लगी हुई हैं, मगर 1,20,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, और अभी प्राइमरी स्कूल खुले नहीं हैं, अभी एलिमेंट्री स्कूल्स खुले नहीं हैं। ये मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूं जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनकी 9th और 10th की और उससे ऊपर की। सो हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह भी एसओपीज को फॉलो किया जा सके उस तरह किया जाए। मैं खुद जाके स्कूल्स चेक किए हैं, मैं खुद दोबारा जाके स्कूल्स चेक करूंगा, और इन चीज़ों पे पूरा पैरा दिया जाएगा इन चीज़ों के ऊपर। जहाँ तक हमारी पूरी एफर्ट्स हैं हम वो लगाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बहुत क्लोजली बैठ के। इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझे बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 25,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए तो अभी तक 54 केस सामने आए। तो कल से जो शेड्यूल के मुताबिक दूसरा मरला शुरू होने जा रहा था, क्या वो शेड्यूल के मुताबिक ही चलेगा, क्या उसमें जैसे सिंध ने मुलतवी किया है तो आप उसको क्या करेंगे? मैं आपको एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊँ। जो कल का स्केड्यूल है बिल्कुल उसको उसी तरह फॉलो किया जाएगा। कल इंशाअल्लाह ताला 6 through 8 खोली जाएगी। सिंध ने किस बेसिस पे किया है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप ज़रा उनके नंबर्स भी देख लें जो आ रहे हैं कोविड के। आप ये भी देख लें कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया है। ये सबकी समझ से बाहर कि वो अलग क्यों एक चीज़ करना चाह रहे हैं किसी को नहीं पता। अगर आप उनके टेस्टिंग रिजल्ट्स देखें और उनके केसेस देखें, सब चीज़ें उनको भी बाकी मुल्क की तरह कल स्कूल 6 through 8 खोल देने चाहिए। अच्छा, राजा ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जाता है कि अपोजिशन की APC नाकाम होगी, लेकिन कोई भी जो हुकूमती वज़ीर है, बशीर है, अहदेदार है, पहले APC पे बात करता है, फिर कोई दूसरी बात करता है जैसे आपने किया। तो इससे तो लगता है कि अपोजिशन कामयाब हो गई है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने देखा जो वहाँ पे बातचीत हुई है, सब चीज़ें हुई हैं। एक इवेंट हुआ है, आपने इवेंट के बारे में तो बात करनी है, क्यों नहीं करनी। एक सो कॉल्ड आप उसको अपोजिशन कहते हैं, सो उनकी अगर बात नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, सो पॉलिटिकल बात तो होगी। सर ये बताइएगा कि जनवरी में ब्लॉक मार्च इनका होने जा रहा है, तो आप इजाज़त देंगे या फिर ताकत के बलबूते में रोकेंगे? इनको क्या करेंगे? इनको पहले भी हमने इजाज़त दी थी, अब भी इजाज़त है। आपको याद ही है जब आए थे इस्लामाबाद सोचती। जी, तो महकमा से कल रिपोर्ट जारी की है, उसमें लाहौर, गुजरात में 6 में, जोधपुर में, दो स्कूल ऐसे हैं कि एक क्लास में जो है सील किया गया। क्या महकमा से तो महकमा स्कूल एजुकेशन में कोई गैर है, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। हमारे पास जो कैप्टन खान साहब की तरफ प्रेस रिलीज आई थी, देखिए अगर एक केस निकलते तो उस क्लास को जो है रोका जाएगा। देखें, मैं आपको इस पर क्लैरिटी दे दूं। जो आपके पास एक दिन पहले खबर आती है ना, वो डे टू डे चीज़ें इस पे चेंज हो रही हैं। डे टू डे जो फैसले हैं वो डे टू डे चेंज होते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जहाँ पे एक केस निकल रहा है, जहाँ तक स्कूल एजुकेशन का कंसर्न है, स्कूल एजुकेशन वो स्कूल बंद करेगा, क्योंकि एक बच्चा जो है या एक टीचर जो है वो विद इन डे सारे स्कूल को दे सकता है। करो सर, ये डे टू डे फैसले जो हैं वो आपको अपनी कंडीशंस के लिहाज से करने हैं। डे टू डे फैसले इसमें चेंज हो सकते हैं, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। प्राइवेट स्कूल क्लासेस का बता दीजिएगा कि फीस कंपटीशन होंगे, और दूसरा ये बता दीजिएगा कि 3 महीने हो गए इन सर्विस प्रमोशन हुए टीचर्स की, और जिस जो है अभी तक वो गवर्नमेंट हो रही टीचर्स के लिए, और टीचर जो है वो पुराने ग्रेड में इन सर्विस प्रमोशन
देखिए मेरे ख्याल से दैट विल बी टेकन केयर ऑफ विद इन 1 वीक इंशाल्लाह ताला, एक हफ्ते के अंदर ये हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, प्राइमरी स्कूल्स कब खुल रहे हैं? प्राइमरी स्कूल्स दी अभी जो स्केड्यूल डेट है उसी पे रखा हुआ है। अगर कोई चेंज अगले हफ्ते के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा लोड अब आएगा 6 through 8 का, बहुत लोड है स्टूडेंट्स का, जब वो आएगा तो साथ साथ डे टू डे उस पर आपको फिर इसी तरह आके बताएंगे दोबारा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एजुकेशन पॉलिसी कुछ चेंज कर दी गई है, कोई नई पॉलिसी? वो जो व्हाट्सएप पे चल रही है ना, आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल किसी ने फेक न्यूज़ चलाई हुई है, सो इसलिए उसको फॉलो ना करें बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हफ्ते वाले रोज जो है वो मैट्रिक के नतائज का ऐलान किया गया है, उसमें सरकारी स्कूल की लाहौर में तो कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब 2 साल आपके को भी हो गए, तो कब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि जो सरकारी स्कूल हैं वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे और जो है निजी स्कूलों के मुकाबले में वो भी अच्छे नतائज देंगे? देखें, ये जो भी चीज़ आप एजुकेशन के अंदर करते हैं ना, स्पेशली पढ़ाई के लिहाज से, जो चेंजेस आप लेकर आते हैं वो रिजल्ट्स आपको एकदम नहीं कभी भी नज़र आते हैं। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो चीज़ अगर मैं प्राइमरी स्कूल में अभी चेंज करूँगा ना, उसका रिज़ल्ट आपको पता लगेगा जब वो बच्चा 10th में पहुँचेगा। ठीक है, 5 से 10 साल लगते हैं एजुकेशन को, जब आप चेंजेस लेकर आते हैं ना एजुकेशन, किताबों के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, आपको वो कभी भी अगले साल रिजल्ट नहीं मिल जाएगा या उससे अगले साल। आपने प्रोग्रेशन में देखना है कि वो बच्चा जब अगली क्लास, आखिरी क्लास तक जब पहुंचेगा तो एंड पे एग्जैक्टली रिजल्ट निकला क्या। क्योंकि एजुकेशन इज नॉट कि आपने जाके फैक्ट्री खड़ी कर दी, आपने जाके सड़क बना दी, आपने पुल बना दिया, आपने कुछ और कर दिया, उस तरह नहीं। इट इज़ अ प्रोग्रेशन दैट टेक्स टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल से 6 to 8 क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन इन केसेस ज़्यादा हो गए तो क्या आप प्राइमरी के जो सेक्शन खोलना उस पर नज़रसानी करेंगे खोलने के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल से हमें पता लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 1 वीक केसेस बढ़ रहे हैं या केसेस इंक्रीज हुए हैं, कोई भी डेट जो है वो बिल्कुल हतमी डेट नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, तभी आज भी जो फैसला हुआ है वो पूरा हफ्ता देख के हुआ है, सारी प्रोविंसेस ने बैठ के देखा है और सब चीज़ों को देख के उसके बाद ये फैसला किया। अच्छा आपने के बारे में आपने आपका कहता था कि आप सारा करिकुलम चेंज करेंगे, उसमें बेहतरी लेके आएंगे और खासतौर पर एक जैसा करिकुलम दिया जाएगा। अभी पहली से 5 तक आपने अनाउंस भी किया हुआ है, तो पंजाब में क्या सिचुएशन है कि कंपनी राइज हो जाएगा और क्या ये सारा प्राइवेटाइजेशन को डिफरेंट होगा या डिफरेंट होगा? ये इंशाल्लाह ताला मार्च 21 के ऊपर हमारा टारगेट है कि प्राइमरी स्कूल का इंट्रोड्यूस कर दिया जाए स्कूल्स के अंदर, और ये सब पे लागू होगा और पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स पे। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसका क्लियर कर दूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। करिकुलम एक फ्रेमवर्क, सिलेबस एक जैसा होता है, करिकुलम एक फ्रेमवर्क होता है। आप 10 किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं, मगर वो 10 किताबें एज लॉन्ग एज वो फ्रेमवर्क के अंदर हैं, उस फ्रेमवर्क को कवर कर रही हैं, आप कोई भी किताब पढ़ा सकते हैं एज लॉन्ग एज वो उस फ्रेमवर्क के अंदर है। सिलेबस जो होता है वो ये होता है कि सब एक ही किताब पढ़ेंगे, और वो ज़रूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है, आप 10 डिफरेंट किताबें पढ़ा दें एज लॉन्ग एज उस फ्रेमवर्क के अंदर है। अच्छा ये बताइए कि आपने जो किताबों के हवाले से वजाहत की और कहा कि कुछ एंकर जो है वो आकर इन एंकर्स के नाम बता दें, कौन से एंकर? अगली दफ़ा बताऊंगा। मैंने आपको कहा ना, हमेशा मैं पहले वार्निंग देता हूँ, मैं हमेशा पहले वार्निंग देता हूँ आके कि दोबारा वापस ना आना। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को निकाला था, मुझे सिफारिशें आ रही थी, मैंने कहा था कि अब मुझे सिफारिश आई ना, तो यहाँ से 2 महीने पुरानी बात है जब मैंने PCTV में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने कहा था मैं नाम लूंगा जब सिफारिश दोबारा आई। 2 महीने हो गए आज तक सिफारिश नहीं आई। सो मैंने पहले मैं बता रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं ना इन किताबों के लिए, अगली दफ़ा आप आए ना मेरे डिपार्टमेंट के पास, किसी के पास भी, फिर मैं नाम लेके बताऊंगा ये लोग कौन है। पैसे की रिफॉर्म्स के हवाले से बता दीजिएगा, उधर भी कोई MD रुक नहीं रहा, 3-4 MD जो है वो तब्दील हो गए और स्कूलों को अभी तक जो है पैसे नहीं मिल सके। अगस्त के बाद से जो है उनको फंड नहीं मिले, तो वो भी स्कूल परेशान है। एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं और उनके पास इंतजाम कोरोना के लिए जो पैसे मैं सारे आपको बता दूँ। 24 को मीटिंग है, 24 कब है? परसों मीटिंग है बोर्ड की। बोर्ड इंशाल्लाह ताला उस पर पूरा फैसला कर रहा है, और मेरे ख्याल से विदिन 10 डेज़ उनके पास इंशाल्लाह ताला पैसे विदिन 2 वीक्स पहुंच जाने चाहिए, और ये बोर्ड का फैसला है, और 24 को उनकी बोर्ड की मीटिंग है। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि करिकुलम आ रहा है, तो जिस जैसे अनाउंस किया गया है तो एक नई तंजीम बन गई है ऑल पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन के नाम से, तो वो भी मुकाबला वगैरह आप लोगों के साथ करने जा रही है, जिससे आपका तैयार की है। उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत ने उनके साथ बैठ के उनकी टाइम में जो है नहीं बनाया, जैसा कि अगले साल अब उनके पास स्टॉक अगर गोदामों में देखा जाए तो 30-30 पैंतीस
स्टोर का है 30, 35, 35 उनकी किताबों में जो किताबें छप चुकी हैं जो अभी आनी थी तो उनको किस तरह से देख रहे हैं इसके शक्कर महमूद ने उनके साथ हमदर्दी का लिहाज कहा है कि जैसे दूसरी इंडस्ट्री ने नए पाकिस्तान के साथ किया आपने भी तो उनके कोई एहतजाज का आप लोगों को प्रेशर है कोई pressure या उनके साथ ही मुज़ाकरा करने आप जा रहे हैं देखें अभी तक तो इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई मगर उन्होंने पहले से किताबें क्यों छाप के रखी हुई हैं जब उनको बताया मैं हमने कि नया करिकुलम आना है तो वो पहले से किताबें छाप के क्यों बैठे हुए सो आई मीन इट्स सिंपल एज दैट जब एक चीज़ हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि एक नया करिकुलम आना है और हमने डेट्स दी हुई हैं उसकी बड़े अरसे से डेट्स दी हुई हैं सो पहले किताबें छाप के क्यों बैठे हुए हैं आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज सो मुज़ाकरात करने होंगे ज़रूर कर लेंगे मगर मुझे इस बात की भी समझ नहीं कि वो पहले से किताबें छाप के क्यों बैठे हुए हैं अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि MPI पंजाब नेशनल उन्होंने 100 किताबें ऐसे निकाली जिनको बैन ओ सॉरी मैं एक सवाल उनका रह गया था वो MD PEF का के बारे मैं आपको एक चीज़ बता दूं मुझे 10 बंदे भी चेंज करने पड़ेंगे ना कहीं पे भी मैं कर दूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लोग मुझे आगे कई दफ़ा कहते हैं जो डिपार्टमेंट में आते हैं ये आपका बंदा है वो आपका बंदा है ये आपका बंदा है सब नए लोग हर कुछ महीने के बाद सब बदल जाते हैं कोई मेरा बंदा नहीं है मैं आपको आज गारंटी से बता दूं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में ये बात रिकॉर्ड कर लें लिख लें कोई मेरा आदमी नहीं जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी छुट्टी है दैट्स इट सेक्रेटरी स्कूल ज़बरदस्त काम कर रही हैं मैं आपको ये बता दूं सब झूठी खबरें एज यूजुअल हाइप बनाई गई उनकी तबीयत ख़राब थी उन्होंने छुट्टी ली भी थी और उनकी सेहत वाकई में ख़राब थी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ डिपार्टमेंट और यहाँ पे खबरें चल रही जी सेक्रेटरी स्कूल चेंज होने जा रही हैं कैसी बातें करते हैं ज़बरदस्त काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से ज़बरदस्त यहाँ काम तो ये खबरें भी चल रही हैं कि आपको कोई और डिपार्टमेंट महकमा दिया जा रहा है और आपसे ये वजारत जो है लेकर किसी और को दी जा रही है चलें। अब इसके बारे में बताएंगे इसके बारे में ये वज़ीर आज़म का फ़ैसला है अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि मेरी कहीं और ज़रूरत है मैं उनके फ़ैसले के साथ हूँ सर, पंजाब हाईकोर्ट की MD चेंज हो गई 100 किताबें उन्होंने निकाली हैं ये जी किताबें नहीं बैन हो गई अब नहीं पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल उसके बाद मौजूदा सिलसिला बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे कमेटीज़ बैठी नहीं है आप ज़रूर MD साहब के पास जाएं वो आपको पूरा बताएंगे जो कमेटीज़ इस चीज़ पे काम कर रही हैं आप MD PCTB के पास जाएं एग्जैक्टली वो आपको बताएंगे कौन कौन सी कमेटीज़ उन 100 नहीं उन 10,000 किताबों में सेक्शन वाइज बना के किस तरह काम कर रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे एनीथिंग एल्स बहुत शुक्रिया आप सबका पाकिस्तान जिंदाबाद